سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی کے موقع پر اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں پاکستان پیپلز پارٹی گلاسگو کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، کارکنان اور کمیونٹی کی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گلاسگو سے سینئر اینکر پرسن شکیل زاہد کی رپورٹ کے مطابق تقریب کا آغاز لافتہ کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی خدمات، جمہوریت کے لیے جدوجہد اور عوامی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے مقررین نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھٹو ایک عظیم عوامی رہنما تھے، جنہوں نے پاکستان کو ایک مضبوط آئین دیا اور عوام کو شعور شناخت عطا کی۔ تقریب کی صدارت صدر پیپلز پارٹی گلاسگو طاہر بیگ نے کی، جبکہ تقریب کے معنی خصوصی مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر سید خورشید بخاری تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کے مشیر سید خورشید بخاری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید بھٹو ایک عظیم رہنما تھے، جنہوں نے پاکستان کو ایک مضبوط اور خود مختار ریاست بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو کا وژن آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور عوامی حقوق، جمہوریت و انصاف کے لیے ان کی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس موقع پر تنظیمی حوالے سے ایک اہم اعلان بھی کیا گیا، جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی گلاسگو کے یوتھ ونگ کے قیام کا اعلان کیا گیا اور سید ذیشان بخاری کو اس کا صدر نامزد کیا گیا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی گلاسگو کی تنظیم نے جو ہے وہ جناب ہمارے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 47ویں برسی کا اہتمام یہاں پہ کیا۔ ان کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور سب مقررین نے یہاں پہ اس بات کا برملا اقرار کیا کہ آج پاکستان اگر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، ایٹمی قوت بنایا، تو ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کہ آج بھٹو صاحب کی 47ویں برسی ہے، تو ہم نے بڑے عقیدت کے ساتھ منائی ہے، تو ہم ان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان پورا ان سے پیار کرتا ہے۔ آج جو عزت ہے پاکستان کی بھٹو صاحب کی وجہ سے۔ ہمارے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 47ویں برسی تھی، جو بڑی عقیدت اور بڑی عزت سے ہم نے ادھر گلاسگو میں منائی ہے، اور دوبارہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ جو ہمیں ان کی شدت سے آج ہمیں کمی بھی محسوس ہوئی، اور ہمیں ان کے کارنامے پہ بڑا فخر بھی محسوس ہوا کہ آج ہمیں پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور آج جو دنیا کے حالات۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے صدر مرزا امین، پیپلز پارٹی انگلینڈ کے کوارڈینیٹر سرور رانچا، سینئر نائب صدر اسکاٹ لینڈ سید تنویر گیلانی، صدر پیپلز پارٹی گلاسگو مرزا طاہر بیگ، جنرل سیکرٹری رضا شیخ، سینئر نائب صدر انصر نواز پوٹھی، انفارمیشن سیکرٹری حبیب احمد، مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ یوتھ ونگ کے صدر رانا عاصم، پاکستان پیپلز پارٹی کے درینہ کارکن شیخ حمید ایڈوکیٹ، سفیر امن برطانیہ کے چیئرمین محمد اظہر، پاکستان پریس کلب اسکاٹ لینڈ انٹرنیشنل کے صدر کیپٹن فرید انصاری، اسکاٹ لینڈ کی معروف کاروباری شخصیت نثار کھوکھر اور دیگر افراد نے شرکت کی، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی سیاسی خدمات اور عوامی جدوجہد کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر ذوالفقار علی بھٹو کے سال ثواب کے لیے اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق پیکیجز گروپ ورکرز یونین سندھی مزدور اتحاد پاکستان اور یونی پاکستان لائزن کونسل کے زیر اہتمام اور قائد محترم شیخ محسن الیاس، ممبر گورننگ باڈی ورکر ویلفیئر فنڈ وفاق پنجاب، صدر یونی پاکستان لائزن کونسل، کنوینر سندھی مزدور اتحاد پاکستان، جنرل سیکرٹری پیکیجز گروپ ورکرز یونین کی قیادت میں وقتی جنگ بندی اور قیام امن میں اظہار تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان بھر سے مزدور رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں فصیح الدین بلال، احمد سیال، محترمہ ایمہ محمود چودھری، فاروق احمد، میاں محبوب حسین، محمد شفیق، پیر محمد کاکڑ، محمد زاہد بھٹو، محمد شہباز چودھری، دیگر مزدور رہنماؤں نے شرکت کی اور اظہار خیال کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر قائد محترم شیخ محسن الیاس نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وقتی جنگ بندی اور قیام امن کے لیے کیے گئے اقدامات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں عالمی امن کا قیام دنیا کی ترقی، معیشت اور کاروباری سرگرمیوں کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وقتی جنگ بندی جیسے اقدامات امن، بھائی چارے اور ملک و قوم کی ترقی خوشحالی کے لیے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کیا کہ یہ مذاکرات مستقبل میں مستقل جنگ بندی کی بنیاد بنیں گے اور عالمی سطح پر استحکام پیدا ہوگا، جس سے عوام اور محنت کش طبقے کو مہنگائی جیسے مسائل سے ریلیف ملے گا، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ خطے اور دنیا میں امن کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کیا اور حالیہ سفارتی کوششیں اسی تسلسل کی قابل تحسین مثال ہیں۔
नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समरियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक पीरा फोर्स इंचार्ज हुसनैन मुनीर और हाजी राहिल अंसर मलही और चेयरमैन प्रेस क्लब समरियाल मकसूद इलाही बोबी गांव किशनगढ़ में तशरीफ लाए। किशनगढ़ आमद पर लोगों ने मौजूद मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया। ढोल बजाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की और मालाएं पहनाई गई। इस मौके पर लोगों ने मौजूद मेहमानों को गाँव के लोगों को दरपेश मसाइल बताए। इनका कहना था कि सड़कों पर पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से स्कूल जाते बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमाजियों को नमाज के लिए जाते हुए मुश्किलात पेश आती हैं। इनका कहना था कि रोड से गुजरते हुए राहगीरों को इस हवाले से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गंदे पानी की वजह से बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पानी का कोई निकास नहीं है, छपड़ों में मिट्टी ज़्यादा हो गई है, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। अहलियाने किशनगढ़ ने मुतालबा किया है कि नाले को जल्द से जल्द तामीर कराया जाए और छपड़ों की सफाई का काम फौरी शुरू करवाया जाए। अवाम ने पीरा फोर्स इंचार्ज हुसनैन मुनीर से मुतालबा किया है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर समरियाल अदनान बशीर वड़ाइच से दरख्वास्त की जाए कि नाला तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम फासले का है और इसको जल्द से जल्द तामीर कराया जाए। इसके बाद नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि हम वज़ीर आला मरीम नवाज से गुजारिश करते हैं कि किशनगढ़ को दरपेश मसाइल का फिलफौर नोटिस लिया जाए। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਹੀਲ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸਨੈਨ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਮੜਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੈਨ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ और जी वेलकम करो। हुसनैन साहब आ गए ने। सियालकोट के थाना रंगपुरा के एसएचओ सिकंदर अली और इनकी टीम की बड़ी कार्रवाई। मोहल्ला हीरापुरा से शहरी के घर से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज शकील सेठी। आज ही सियालकोट के थाना रंगपुरा की पुलिस की बड़ी कामयाबी। घर में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की बड़ी चोरी का मुअम्मा हल। मुलजमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना रंगपुरा के इलाका पुरा हीरा में एक घर में होने वाली 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात का मुअम्मा हल कर लिया गया है। पुलिस ने पेशा वाराना महारत, ह्यूमन सोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए चोरी शुदा माल मसरूका बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया। वाक़या करीब 1 हफ्ता कबल पुरा हीरा रंगपुरा में पेश आया, जहां सलमान खान नामी विर्क नामी शहरी अपनी फैमिली के हमरा रहता था। वहां पर घर में काम करने वाली खातून ने अपने दीगर साथियों से मिलकर सेफ अलमारी से नकदी 1 करोड़ 25 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने इस चोरी की बड़ी वारदात का नोटिस लिया और डीएसपी सिटी सर्कल को तमाम मामला सौंप दिए। उन्होंने तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाते हुए फौरी तौर पर मुलजमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी का हुक्म दिया। डीएसपी सिटी सर्कल की सरबराही में एसएचओ थाना रंगपुरा इंस्पेक्टर सिकंदर अली ने अपनी टीम के हमला ह्यूमन सोर्स इंटेलिजेंस और रवायती तफ्तीशी तरीकों को बरूएकार लाते हुए कलील वक्त में ही मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान जैन अब्बास, उस्मान अली, मुसम्मात दीबा, मुसम्मात फरजाना और मुसम्मात मरियम को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से चोरी शुदा माल मसरूका 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद कर लिए। जबकि शहरी ने माल मसरूका की वापसी पर पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा किया है। इस मौका पर डीपीओ सियालकोट कैप्टन दोस्त मोहम्मद ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि पुलिस आवाम के जानो माल के हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने आवाम से यह भी अपील की है कि वो मशकूक सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में नए तैनात होने वाले कमिश्नर इरफान अली काठिया साहिब से सियासी समाजी शख्सियत सजादुल हसन बलोच और चेयरमैन चुलिस्तान हकूक बहाली तहरीक राय गुलाम नबी
परहाड़ ने कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर सजादुल हसन बलोच और राय गुलाम नबी परहाड़ ने कमिश्नर भावलपुर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उन्होंने कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और सराय की सकाफत की अलामत अजब पहनाई। मुलाकात के दौरान भावलपुर डिवीज़न और ख़ुसूसन चोलिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल, तरक्याती मनसूबों और इलाकाई तरक्की के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर इस उम्मीद का इज़हार किया गया कि नए कमिश्नर की क़यादत में खिते में तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के शुबा आउटडोर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। पोलियो का मुकम्मल खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कमिश्नर भावलपुर इरफान अली काठिया जिला भावलपुर को पोलियो फ्री बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरे का लाए जाएंगे। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इंसदाद पोलियो मुहिम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला भावलपुर में पोलियो मुहिम 13 से 16 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा मुहिम के दौरान 8,13,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा पोलियो मुहिम के लिए 3,276 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। हैदराबाद पेट्रोलियम मसनूआत और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी तहरीक की अपील पर प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताली कैंप की क़यादत दादा कादिर रंटोर, सरमत राजपर, नूर अहमद कातियार और दीगर रहनुमाओं ने की, जबकि कैंप में सिंधियानी तहरीक के मरकजी सदर इमरा समूह समेत दीगर कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम पर मौशी जंग मुसल्लत कर दी है, जिसके बायस हर तबका शदीद परेशानी का शिकार है। इनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी हो जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। रहनुमाओं के मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए ताकि आवाम को महंगाई के तूफान से कुछ रिलीफ मिल सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान 4 मुलज़मान के मारे जाने की तस्दीक की है, जबकि 3 मुलज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक टंडो जाम के करीब टंडो कैसल लिंक रोड पर मुबैना डाकुओं की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। ये मुलज़मान 3 अप्रैल को मीरपुर खास से हैदराबाद आने वाली बस के मुसाफिरों से लूटमार की वारदात में मुलव्विस बताए जाते हैं। पुलिस के पहुंचने पर मुलज़मान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और काफ़ी देर तक दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, जबकि मज़ीद नफरी भी तलब की गई है। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के नतीजा में 4 मुलज़मान मारे गए हैं, जिनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल की गई हैं। लाशों को टंडो जाम, राहूकी और टंडो यूसुफ थानों के SHOs की निगरानी में अस्पताल पहुंचाया गया। मारे जाने वाले मुलज़मान की शिनाख्त अब्दुल कदूस लाशारी, असद बोजदार, अब्दुल जब्बार सब्जोई और इरफान बुलीडी के नामों से की गई है। पुलिस का कहना है कि इन मुलज़मान के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ थानों में डकैती और दीगर जुर्म के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज थे। शामिल कहते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद मस्जिद कयूम के करीब दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की वारदात ने शहरियों में शदीद तशवीश पैदा कर दी, जबकि वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक एक सिक्योरिटी इदारे से वाबस्ता इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल नामालूम मुलजिम चोरी करके फरार हो गया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिम इत्मीनान से मोटरसाइकिल लेकर गले से निकल जाता है। अहले इलाका का कहना है कि अगर इस तरह दिन दहाड़े कानून नाफिज करने वाले इदारे से वाबस्ता ऑफिसर भी महफूज नहीं तो आम शहरियों की हिफाजत पर सवाल निशान खड़ा हो जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी इस वाक़े की कार्रवाई की जाए, मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और इलाके में सिक्योरिटी के मौसम इंतजाम किए जाएं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। इलाका में किन्होंने CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शिनाख्त के लिए अवाम से ताउन की अपील भी की। शामिल कहते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों का दौरा, यादगार पार्क में अंडरग्राउंड वाटर टैंक के काम का तफसीली जायजा लिया, जारी काम मुकर्रर टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर साहिवाल मनसूबे में मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर आसिफ तुफैल मानसून सीजन से कबल काम मुकम्मल करने की हिदायत। अंदरून शहर सीवरेज लाइन बिछाने के काम का भी जायजा लिया। सोडी गली बिनातुल इस्लाम बाजार करबला रोड पर काम जारी, तमाम मनसूबों पर लेबर और मशीनरी की तादाद में इजाफा किया जाए। कमिश्नर की हिदायत काम की जगह पर फासिक इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। MD वासा तनवीर कैसर सिंधु ने काम के हवाले से ब्रीफिंग दी है। यादगार पार्क में अंडरग्राउंड वाटर टैंक के काम का तफसीली जायजा लिया जाए, जारी काम मुकर्रर टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर साहिवाल मनसूबे में मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर आसिफ तुफैल मानसून सीजन से कबल काम मुकम्मल करने की हिदायत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।